हेलो बच्चों, आज खुश तो बहुत होंगे आप क्योंकि जुओलॉजी का पेपर इतना इजी आ गया है। आई होप यू ऑल आर रेडी। चलो देखते हैं जुओलॉजी में क्या है करेक्ट आंसर्स। सो आर यू ऑल रेडी? मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चन जुओलॉजी के करके आए हैं। सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कम ऑन फास्ट। तो चलो देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं। याद रखो कि पेपर इजी तो था बट थोड़ा सा लेंदी था, राइट? थोड़े ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस थे, सीक्वेंस में लगाने वाले क्वेश्चंस थे। तो आई डू एग्री कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप सही करके आए हो। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। रेडी एवरीवन? तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। तो जब भी आपके पास करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, एक्सेप्ट जैसे टर्म्स होते हैं बेटा, उसको पहले से ही मार्क कर लेना होता है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। नाउ सी, लिपिड्स आर जनरली वाटर soluble, which is wrong. Proteins are polypeptide, true. Polysaccharides are long chains of sugars, that is true. Adenine and guanine are substituted pyrimidines, बेटा purines हैं. Almost all enzymes are protein. So since almost है यहाँ पे term, तो ये भी सही है। अब हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, so it should be B, C and E, right? So B, C and E only. Answer is 2. Yes, कितने बच्चों ने 2 मार्क किया है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कम ऑन फास्ट। सिलेक्शन हो जाएगा इस बार पक्के से सभी का? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? यार याद रखो, नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, right? They are called molecular scissors, that is true. These are the enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli. This is true. They cut the DNA only at the center of the palindromic sequence, is wrong. They remove nucleotide only from the ends of the DNA fragments, is wrong. We are talking about endonucleases, right? They recognize specific palindromic base pair sequences, is true. So we want the incorrect statements, right? So it should be C and D only. So answer is 3, right? So anyone who has done this mistake, not reading, not true or correct or incorrect in the paper, let me know in the chat box. Yes? Next question. Alpha helix. Straightforward question from biomolecules chapter. Alpha helix is found in which level of protein structure? So we know primary, secondary, tertiary and quaternary structure. Alpha helix and beta pleated sheet are secondary structure. That means correct answer is 4. Next question everyone. Which of the following statements are correct regarding amino acids? Right? They are substituted methane. Yes, they are substituted methane. This is true. Serine is an aromatic amino acid. बेटा aromatic amino acid को अगर आप याद करो, so it was tryptophan, tyrosine and phenylalanine. यहाँ पे serine लिखा है, which is wrong. Valine is a neutral amino acid. Yes, valine सही है. Lysine acidic है, बिल्कुल भी नहीं. Right? So हमें बताना है correct statement. तो A and C will be the correct statement and answer should be 3. Yes, कितने बच्चों ने ये सही किया है? जल्दी बताओ कितने बच्चे सही करके आए हैं इसको? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सो आंसर इज ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पे है हमारे पास बीटी कॉटन। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हमें मिलता है थर्मस एक्वेटिकस से। टीआई प्लाज्मिड इज फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। पीबीआर 322 राइट इज अ प्लाज्मिड। सो ए इज मैच्ड विथ 2, बी इज मैच्ड विथ 3, राइट? तो ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है बच्चों। C is matched with 1 and D is matched with 4. We got our answer. It should be 3. Easy. Please make sure that you are filling the links which are provided in the chat box. Right? तो आपको मिलेगा रैंक प्रेडिक्टर। आप अपने रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हो based on your marks. Okay? Next question. Which of the following statements are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization? तो आप देख रहे हो पेपर सिंपल है बेटा, बट थोड़ा लेंदी है। पढ़ने में ये सारे स्टेटमेंट को थोड़ा टाइम आपको लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिजिक्स के लिए कम टाइम मिला ऐसा कोई बच्चा है जिसको फिजिक्स के लिए कम टाइम मिला? बिकॉज द पेपर ऑफ बायोलॉजी वॉज लेंदी। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नाउ द कटिंग ऑफ डीएनए डन बाय मॉलिक्यूलर सिजर्स, दैट इज ट्रू. द डीएनए फ्रेगमेंट्स
सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन अगारोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिल्कुल सही। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, बिल्कुल भी नहीं, स्टेनिंग बाय इथिडियम ब्रोमाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। The separated DNA fragment when stained with ethidium bromide can be seen in visible light, बेटा UV लाइट लगता है। तो हमें पूछा गया था करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बेटा करेक्ट पूछा गया था, सो इट विल बी A and B, A and B only, so answer here is 4. Easy? चलिए, arrange the following steps of somatic hybridization in correct sequence. So somatic hybridization के correct steps क्या होंगे, राइट तो सबसे पहले तो होगा बेटा आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, आइसोलेशन सबसे पहले होगा, मतलब डी सबसे पहले होगा। हमारे पास ऐसे 2 ही ऑप्शन है। आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल के बाद देयर विल बी डाइजेशन ऑफ द सेल वॉल, तो डी के बाद होना चाहिए ए, राइट। सो डी के बाद ए, हमारे पास हमें करेक्ट आंसर तो मिल गया है, बट आगे हम चेक करेंगे, राइट। Then there will be isolation of naked protoplast and फिर होगा fusion of protoplast जिसे हम बोलते हैं somatic hybridization, and then ultimately there will be growing of hybrid protoplast to form a new plant. So आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका था, टाइम सेविंग है ये वाला क्वेश्चन, भले ही आपके पास 5 स्टेटमेंट है पढ़ने के लिए। यस, ओके, सो करेक्ट आंसर हियर शुड बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन क्या है बच्चों? ट्रिप्सिन एंजाइम है। एक्साइटेड हो जाते बच्चे जब ही मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आता है, इजंट इट? सो ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम। मॉर्फिन, मॉर्फिन इज अल्कलॉइड, कॉन्काविलिन इज लैक्टिन, कोलेजन इज इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। सो ट्रिप्सिन विल बी मैच्ड विथ 3, so A is matched with 3, we have just one option, B is matched with 4, so we got our answer, C is matched with 2 and D is matched with 1, so correct answer for this question will be definitely 1. Easy question है, straight forward question है, एक भी ऐसा question zoology में नहीं आया है जो आपके NCERT में नहीं है। याद रखो, कॉकरोच से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, एनिमल टिश्यू से भी नहीं है, फ्रॉग से इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस हैं, एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से इस बार 11 क्वेश्चंस है, इजंट इट? 11 क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है बच्चों, ओके, देन बायोमोलिक्यूल से 4 क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था पेपर वैसा ही आया है, सो इट्स अ गुड थिंग, इजंट इट? फुल मार्क्स आप ला सकते हो जुओलॉजी में तो। चलो, now insertion of a foreign DNA at BAM-H1 site in an E. coli cloning vector PBR322 result in the loss of antibiotic resistant to words. So if you can recall the structure of PBR322, right? So here you have ampicillin resistant gene, right? Here you have tetracycline resistant gene, right? And here there are 2 recognition side, one is PVU1, PST1, and this side you have BAM-H1 and SAL1, right? SAL1 and BAM-H1. तो यहाँ पर BAM-H1 साइड दिया है, कौन से जीन में है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में है, that means it will lose the sensitivity to tetracycline, right? So it will become it will lose its sensitivity to tetracycline antibiotic. So that's why the answer here should be tetracycline, that means 3. Okay, next question. Choose the correct statement regarding gift to overcome infertility. Gift का full form क्या है बताओ मुझे? Gamete intrafallopian transfer. नाम से सब समझ में आ जाएगा, पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। Ova collected from a female donor are transferred to the uterus of infertile female. बेटा uterus आ गया है, this is wrong. It is the transfer of ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development. So gametes हम introduce करते हैं fallopian tube में, fertilization होने के बाद the embryonic development will be in the uterus, right? So this is what is mentioned in second one, तो ये सही है। थर्ड में लिखा है early embryos with up to 8 blastomere, तो embryos को बेटा हम यहाँ पर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इन द क्वेश्चन itself it is gift, gamete intrafallopian transfer,
सो आंसर हियर इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर्स पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो ये सीक्वेंस तो याद हमें है ही कि सबसे पहले आए थे रामापिथिकस, राइट, और रामापिथिसाइंस, देन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियंस, राइट। तो हमें करेक्ट आंसर तो मिल चुका है। यहां पर देखो बेटा, आफ्टर होमो इरेक्टस दे हैव गिवन रामापिथिकस विच इज रॉन्ग। थर्ड वाले में देखो होमो सेपियंस फर्स्ट लिखा है विच इज रॉन्ग। निएंडरथल मैन के बाद रामापिथिकस लिखा है विच इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। नाउ हियर इन द लिस्ट 1 द फीटस मूवमेंट स्टार्ट एंड हेयर अपीयर्स ऑन हेड। कौन से मंथ में होता है ये? दिस इज बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो ये 5th मंथ में होता है। 5th मंथ मतलब कितने वीक्स? टेल मी, 5th मंथ मीन्स हाउ मेनी वीक्स? यस टेल मी, 5th मंथ। यस, सो हमारे पास है 24 वीक्स का ऑप्शन है, 20 वीक्स का है, 8 वीक्स का है एंड 12 वीक्स का है। ओके, सो इट विल बी 20 वीक्स, राइट। नाउ कमिंग टू द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, सेकेंड मंथ में हो जाता है। ओके, सो 12 वीक्स से हम मैच कर देंगे। फीटस डेवलप एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, सो इट विल बी फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 months. ओके, सो इट विल बी मैच्ड विथ सो फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स को हम मैच करेंगे 3rd वीक से ना, सेकेंड मंथ बोला मैंने, so we will match it with 8 weeks, right? And fetus develop external genital organ first trimester, that is 3 months. We will match it with 12 weeks. And fetus body covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed will be matched with the 24 weeks, right? So A is matched with 2, B is matched with 3, right? And C is matched with 4 and D is matched with 1. We got our answer. Correct answer for this question will be 4. Right? याद रखना है, chronology of development हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता ही है zoology में, isn't it? Now a group of researchers procured some fish-like animal. अब ये fish-like animal कैसा था? उसका एंडोस्केलेटन बना हुआ था कार्टिलेज का, एक्टोपैरासाइट था, पेयर्ड फिन्स था, राइट। सो एक्टोपैरासाइट से हमें समझ में आ गया दैट दिस इज साइक्लोस्टोमेटा, राइट। साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास पेट्रोमाइजन। यस, सो करेक्ट आंसर हियर इज 3। नेक्स्ट वन, स्पर्मेटोगोनिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। वी स्टडी अ लॉट, गैमीटोजेनेसिस इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज। So spermatogonia undergoes a series of cell division to produce sperm, right? So हमें यहाँ पे क्या बताना है? Again, correct statement. So spermatogonia always undergo meiotic division. Spermatogonia में होता है mitotic division. So this is wrong. Primary spermatocyte divide mitotically to produce secondary spermatocyte. Primary spermatocyte में होता है meiosis 1, right? और यहाँ पे लिखा हुआ है mitosis. So this is wrong. Secondary spermatocyte through their second meiotic division produce haploid spermatid. Yes, secondary spermatocyte में meiosis 2 complete होगा और बनेगा spermatid. So this is right. Now spermatids produce spermatozoa through mitosis. Spermatid से spermatozoa बनता है through differentiation और उसको हम बोलते हैं spermiogenesis या spermatogenesis. So this is wrong. Spermatid transform into spermatozoa by spermiogenesis, तो ये सही है, ठीक है। तो spermatid से जब spermatozoa बनता है तब डिफ्रेंसिएशन होता है, कोई सेल डिविजन नहीं होता है। सो दिस इज राइट। तो हमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो हमारे पास करेक्ट है सी है एंड ई है, राइट, सी एंड ई ओनली। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1। इजी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग इन रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है व्हेन देयर इज फॉल इन जीएफआर एंड ब्लड प्रेशर। तो क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो हम सबसे पहले
आगे कर सकते हैं, जस्ट सी, यस। तो हमारे पास है सी ऑप्शन, फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। सो सी सबसे पहले होगा, राइट, एलिमिनेट कर देंगे हम सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। फॉल इन GFR के बाद देयर विल बी रिलीज ऑफ रेनिन that is going to convert angiotensinogen into angiotensin 1. Am I right? Yes? बताओ मुझे चैट बॉक्स में बोलते जाओ। सो सी के बाद आना चाहिए ई। ओके, सो वैसे तो हमें आंसर मिल चुका है, करेक्ट आंसर है 4, बट हम फिर से एक बार चेक करेंगे, राइट। सो बिल्कुल रेनिन ने कन्वर्ट कर दिया है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंड एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 के दो काम होते हैं, एक तो ये क्या करता है, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल एंड इट विल स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, इजंट इट। तो इसके बाद हमारा आएगा डी, राइट, आफ्टर ई इट शुड बी डी। उसके बाद एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने के बाद देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम DCT, so it will be B, and then ultimately at the end blood pressure भी बढ़ जाएगा उसकी वजह से और GFR भी बढ़ जाएगा, so it will be A. So we got our answer, ultimately it should be 4. तो आप देख रहे हो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, स्टेटमेंट्स थोड़े ज़्यादा है, बट स्टिल आप देख रहे हो बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। जस्ट बाय रीडिंग 2 स्टेटमेंट्स यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पेपर दिखने में लेंदी है, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है साल भर क्वेश्चंस करने की, तब डेफिनेटली आप सेव टाइम कर सकते हो जूलॉजी में। गेटिंग द पॉइंट? यस बेटा, चंद्रशेखर, मधु, यस। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज हैं, इजंट इट। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यहाँ पर है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू होता है 1000 to 1100 ml, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम विल बी 1100 to 1200 ml। नाउ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 2500 to 3000 ml, एंड टाइडल वॉल्यूम तो सबसे इजीली हम मैच कर लेंगे 500। एम आई राइट? बहुत इजी था। तो ए को हम मैच कर लेंगे 3 से, राइट, एलिमिनेट कर दिया हमने 2 ऑप्शन। बी इज मैच्ड विथ 4, ठीक है। चलो आंसर भी मिल चुका है हमें। सी इज मैच्ड विथ 1, सी को हम 1 से मैच कर लेंगे, राइट, एंड डी इज मैच्ड विथ 2। तो आंसर मिल चुका है, आंसर हियर इज 3। अगेन बाय जस्ट मैचिंग 2 ऑप्शंस वी गॉट द आंसर। आई होप यू गाइज विल एग्री, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट इज हार्मोन रिलीजिंग IUD बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। मल्टीलोड 375 इज कॉपर रिलीजिंग IUD, right? So it is copper releasing IUD. Diaphragm is a barrier made up of rubber used by females. Saheli is oral contraceptive, right? A is matched with 4. So A is matched with 4. हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शन है. Now B is matched with A is matched with 3, right? हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शन है, हम उसको मैच कर लेंगे, right? A is matched with 2 ऐसे ऑप्शन है 3, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. नाउ B इज मैच्ड विथ 4, राइट. C इज मैच्ड विथ 1. सो वी गॉट आवर आंसर. करेक्ट आंसर विल बी 1 बिकॉज D इज अगेन मैच्ड विथ 2. ठीक है, तो हमें आंसर मिल चुका है, इट शुड बी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लाइटलेस बर्ड्स विथ 4 limbs modified as a pedal-like structure for swimming is known as. तो ऐसा बर्ड जो स्विमिंग करता है वो है पेंगुइन, एंड पेंगुइन का साइंटिफिक नेम है एप्टिनोडाइट. सो एप्टिनोडाइट, यस, करेक्ट आंसर इज 4, राइट. सो वी नो दैट नियोफोरॉन इज वल्चर, सिटाक्युला इज पैरेट, और हमें चाहिए था एप्टिनोडाइट विच इज पेंगुइन. सो करेक्ट आंसर हियर शुड बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the set of fishes which belong to osteichthyes. Devil fish is octopus, mollusca बच्चों. Starfish echinodermata. देखो flying fish which is pterophyllum. याद करो साइंटिफिक नेम्स, बार बार मैंने करवाए थे आपको. Angel flying fish is exocetus, sorry. Angel fish is pterophyllum and fighting fish is betta. And all these 3 belongs to bony fishes, right? So flying fish, exocetus,
angelfish, pterophyllum, and fighting fish is betta, and all of them are bony fishes. यहाँ पर भी अगर हम sawfish को देखें, that is pristis, okay, which is chondric thighs, okay. Though there is fighting fish, याद रखो dog fish कौन सा है, Scalidon है, which is again cartilaginous fishes. तो correct answer here should be 3. चलिए नेक्स्ट इज द WBC काउंट ऑफ अ पर्सन. एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया है फ्रॉम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर. सो WBC काउंट ऑफ अ पर्सन's ब्लड सैंपल इज 8000. ओके, हाउ मेनी eosinophils एंड lymphocytes वुड बी इन द सेम ब्लड सैंपल. कैसे सॉल्व करना है, कितने बच्चों ने ये सही किया है, कैसे सॉल्व करना है. eosinophil इज हाउ मच, 2 to 3%. lymphocytes are how much, 20 to 25% of 8000, isn't it? तो हमें मिलेगा ultimately ये values, right? And can you see this is not even matching any other value. Okay, so याद रखना है, it is option 1. This is the differential count of WBC. So अगर आपको percentage याद है WBC का, तब आप definitely इसको बहुत easily solve कर सकते हो, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द टॉक्सिन प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis कोडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वुड कंट्रोल बॉलवर्म. राइट, सो जस्ट cry1AC एंड cry1AB, क्योंकि जो पहला वाला है ना वो हमें बताना है दैट विल कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, और जो सेकेंड वाला है ना वो हमें बताना है दैट विल कंट्रोल द कॉर्न बोरर्स. इजंट इट? बी केयरफुल. यहाँ पर अगर आप विजिलेंट नहीं हो, यहाँ पर अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तब आप गलत कर सकते हो. हियर द आंसर शुड बी 3. कितने बच्चों ने 3 किया है? वेरी गुड विक्रम, वेरी गुड. और बाकी बच्चों ने क्या किया है? 3 किया है. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बट आई होप यू हैव डन इट राइट. चलिए नाउ निकोटीन की बात करते हैं. निकोटीन बहुत ही अच्छा मैच द फॉलोइंग है फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर. Nicotine will always stimulate adrenal gland to release catecholamines into the blood, right? Morphine painkiller है, effective sedative and painkiller है. Heroin will be depressant and slows down body function, right? So heroin is diacetyl morphine. It is not a natural drug and it is only abused. Morphine will be used as a painkiller. Now cocaine is a stimulant. तो कोकेन को हम मैच करेंगे कॉजेस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी से. सो 1 इज मैच्ड विथ, चलिए A इज मैच्ड विथ 2 देख लेते हैं, राइट. B इज मैच्ड विथ 3. तो हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शन है 2 and 3. C इज मैच्ड विथ 4. तो हमें आंसर हमारा मिल चुका है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2. इजी. कितने बच्चों ने ये सही किया है बताते चलो मुझे फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now tetany. So tetany is prolonged contraction without relaxation of muscles. तो tetany को हम मैच कर देंगे wild contraction in muscles due to low calcium in the body fluid. Arthritis will be matched with inflammation of joints. Myasthenia gravis is autoimmune disorder and muscular dystrophy is progressive degeneration of skeletal muscles. So A is matched with 3, B is matched with 1, C is matched with 2 and D is matched with 4. एक ही ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, that is option 1. Next question. Now arrange the following cell layers around the female gamete from outer to inner. तो if you can recall the structure of an ovum, बाहर की तरफ होते हैं elongated cells which are corona radiata. सबसे बाहर है corona radiata, फिर होता है zona pellucida, then the perivitelline space. Okay, and then the ulema. So corona radiata सबसे पहले होगा C. C के बाद there will be zona pellucida, that is A. Zona pellucida के बाद perivitelline space, that is B. And उसके बाद होगा plasma membrane of ovum, that is D. CABD, right? CABD. Correct answer here should be 2. Am I right? कितने बच्चे सही करके आए हैं और कितने बच्चों को इसमें confusion हुआ है? Let me know. Right? Now next is the human protein named alpha-1 antitrypsin. A question from biotechnology. Obtained from
transgenic animals is used for the treatment of emphysema? Right? बहुत ही straight forward question है. So correct answer here should be 2. Yes. Next, male frogs can be distinguished from female frog due to the presence of. So bulging eyes, no. Yes, it is vocal sacs, and it is copulatory pads on first digit of the forelimb, and not even color. So दो ही option है which is characteristic feature and that will distinguish the male frog and the female frog. So one is B and one is D, right? One is B and one is D, and that is 1, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग्स एनाटॉमी. तो बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बट कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं आया है, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया है, कुछ अनप्रेडिक्टेबल नहीं आया है. आया है क्या? तो मुझे आप बताओगे कौन से क्वेश्चन में आपने मिस्टेक किया है. लेट मी नो. So hepatic portal system is a special venous connection between the liver and intestine. That's true. There are 12 pairs of cranial nerves arising from the brain. नहीं बेटा, अगर हम फ्रॉग की बात करें 10 pairs होते हैं. The ureter and oviduct open separately into the cloaca in female frog. That is true. क्योंकि मेल फ्रॉग में होता है urinogenital duct, whereas in female frog it is open separately. Now hindbrain consists of cerebellum, medulla oblongata, optic lobes. गलत है. And sinus venosus join the right atrium of the heart. That is true. Right, so sinus venosus get deoxygenated blood from the vena cava, and then it pours that deoxygenated blood into the right atria of the frog. Right, so we want the correct statements. A, C, E will be the correct one. So correct answer should be 2. Easy. चलो, कोई specific question zoology से that you have done wrong, let me know in the chat box. So coming to this next question, select the incorrect statements with reference to RH grouping. ठीक है. So erythroblastosis fetalis में कुछ बच्चों को confusion होता था, but मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी ने mistake किया होगा. अगर किया है तो वो silly mistake होगा. Let me know. Now erythroblastosis fetalis is a condition observed having fetus with RH negative blood. बेटा ये गलत है, क्योंकि fetus होता है RH पॉजिटिव एंड मदर का ब्लड होगा RH नेगेटिव. तो ये गलत है. बी केयरफुल. RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन RBC इन द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. दैट इज ट्रू. बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच. बिल्कुल मैच करना चाहिए. RH इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ प्रेग्नेंट मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव. एब्सोल्युटली करेक्ट सिनेरियो. यस और नो? बताओ मुझे. Now erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother. यहाँ तक तो ठीक है. फिर क्या लिखा है देखो. Immediately after the delivery of the second child. First child होना चाहिए, तो ये गलत है. हमें बताना था करेक्ट आंसर. राइट, सो बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है. राइट, और यहाँ पर देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे करेक्ट लिखा है, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है. इनकरेक्ट कौन सा है? ए इनकरेक्ट है, ई इनकरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर हियर शुड बी ए एंड ई ओनली. सो करेक्ट आंसर इज 1. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन एंडोस्केलेटन? ह्यूमन स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक. तो हमारा स्कल कैसा है? डाइकॉन्डाइलिक है. इट इज डाइकॉन्डाइलिक. राइट, सो डाइकॉन्डाइलिक है, देन दैट मीन्स इट इज रॉन्ग. द जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट. यस, इट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट. इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज 7. बिल्कुल 7 है. ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर्स आर बाइसेफेलिक. बेटा सारे रिब्स बाइसेफेलिक है. यहाँ पे बाइसेफेलिक का मतलब होता है 2 हेड्स. सेफेलोस मीन्स हेड, बाई मीन्स 2, सो दे हैव 2 हेड्स एट द बैक डॉर्सली. तो यहाँ पर बाइसेफेलिक का मतलब है 2 हेड्स डॉर्सली. सारे ही हैं बाइसेफेलिक, तो ये गलत है. द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद द एटलस वर्टिब्रा. दिस इज ट्रू. ये सही है. राइट, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. राइट, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो इट इज बी, सी एंड ई. राइट, बी, सी एंड ई ओनली. आंसर इज 3. कितने बच्चों ने 3 मार्क किया है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक मैच द फॉलोइंग है। बहुत सारे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस हमारे जूलॉजी में आए हैं। एनी स्टूडेंट जिसने गलती की है जूलॉजी में, कौन से क्वेश्चन में गलती की है, लेट मी नो। सिली मिस्टेक ही होगा मेजरली। ओके, सो कॉर्टिसोल की बात करते हैं। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, बिल्कुल सही। एल्डोस्टेरॉन, फिर से ये रिपीट हुआ है कॉन्सेप्ट बच्चा। तो एल्डोस्टेरॉन विल कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। कोलिसिस्टोकाइनिन, सो अगर हम CCK-PZ की बात करें, कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन विच इज a hormone released in GIT, so it will be responsible for secretion of pancreatic enzyme and bile juice. It causes constriction of the gallbladder, release of bile juice, and it also stimulates the pancreas to release pancreatic enzyme, right? Progesterone, right? It stimulates the formation of alveoli in mammary gland. So A is matched with 2, B is matched with 3, C is matched with 4 and D is matched with 1. So आंसर हमें मिल चुका है 2, right? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। Absolutely correct. So it is 2. Next one. So the following are the stages of life cycle in a plasmodium. Arrange the stages in the proper order. तो एक बार क्या करना है आपको, आप एक एक करके अगर पढ़ोगे ना थोड़ा टाइम लगेगा। आपको एक बार गो थ्रू करना है सारे ही ऑप्शंस को, और यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा है फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स इनटू द ह्यूमन ड्यूरिंग बाइट। तो लाइफ साइकिल तो वहीं से स्टार्ट होगी, राइट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर शुरू होना चाहिए ई से। तुम्हारे पास ऐसे 2 ऑप्शन है। तो एक बार स्पोरोजोइट्स ब्लड में पहुँच गया, फिर कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। सो नाउ दीज विल गो राइट टू द लिवर सेल्स थ्रू ब्लड, राइट? सो ई के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो हमें आंसर तो हमारा मिल चुका है 2, राइट? फिर आगे भी हम इसको मैच करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। फिर द पैरासाइट्स विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इनसाइड द लिवर सेल्स, राइट? सो उसके बाद आना चाहिए बी, एंड देन द पैरासाइट विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन RBC bursting the cells and ultimately राइट गैमेटोसाइट्स विल डेवलप इन द RBC। तो आंसर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज 2। एनीबडी हु डिड दिस क्वेश्चन रॉन्ग बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जहां भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हो, करेक्ट इनकरेक्ट पहले आप मार्क करोगे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स इज इनकम्प्लीट, सो दैट इज ट्रू। बायलैटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। एडल्ट एकाइनोडर्मेटा स्टारफिश रेडियली सिमेट्रिकल होता है, दिस इज रॉन्ग। स्यूडोसीलोम इज पोजेस्ड बाय एस्केल्मेंट्स, यस एस्केल्मेंट्स स्यूडोसीलोमेट होते हैं। फॉल्सीलोम होता है उनमें जो बॉडी कैविटी है इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म and the mesoderm is present in the form of scattered pouches. तो ये सही है। Notochord is persistent throughout the life in class chondrichthyes line of NCERT। हम पढ़ते हैं कि नोटोकॉर्ड रहता है यूरोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा में भी हम पढ़ते हैं सिर्फ टेल में होता है, वो भी लार्वा के। सिफेलोकॉर्डेटा में हम पढ़ते हैं कि हेड टू टेल होता है थ्रू आउट द लाइफ। बट कॉन्ड्रिक्टाइज में भी बच्चों नोटोकॉर्ड होता है persistent throughout the life, this is true। Members of class Reptilia maintain a constant body temperature, बिल्कुल भी नहीं। होम्योथर्म्स तो सिर्फ और सिर्फ एव्स होते हैं, मैमलिया होते हैं, isn't it? They are only homeotherms, यहाँ पे लिखा है रेप्टिलिया। अब हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो B is incorrect, right? E is incorrect, so correct answer here should be 1। 1 किया है या कुछ कंफ्यूजन हुआ है? किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ है इस क्वेश्चन में? लेट मी नो। यस चंद्रशेखर। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर इन अ सिनैप्स आर प्रेजेंट ऑन। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड देन इट गोज इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड देन इट विल बाइंड टू द
पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स है उससे. सो यस, द रिसेप्टर्स विल बी देयर इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. सो आंसर इज 1. इजी. चलिए नेक्स्ट. सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास. अ मोटर न्यूरॉन कैरीज अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द sarcolemma of the muscle fiber. So motor neuron will carry the signal from the central nervous system to the sarcolemma of the muscle fiber. बिल्कुल सही बात. Now the neural signal generate an action potential which causes the release of calcium in the sarcoplasm. That is also true. Now increase in calcium inactivate the actin. So this is wrong. तो जैसे ही कैल्शियम बढ़ता है, that calcium will bind to troponin and will activate the muscle contraction, isn't it? Now actin bind to the myosin head, to form a cross bridge. Absolutely correct, right? So this is correct. Now shortening of the sarcomere takes place by pulling actin filament towards the center of the A band. तो जब muscle contraction होता है वो होता है sliding filament theory के through, right? So it's not like there is shortening of any actin or myosin filament. There is sliding of actin filament over myosin filament, right? Sliding होता है. So shortening of sarcomere होता है. कैसे होता है? By pulling of actin filament towards the center of the A band. That is also true. But हमें बताने थे correct statement. A, B, D and E will be the correct statements. And हमारे पास ऐसा option है. Correct answer is 1. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. मतलब हमें बताना है यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल. सो आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, काम सेम है, विजन. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. फोर लिम्ब ऑफ वेल्स एंड बैट्स. वेल्स भी मैमल्स हैं, बैट भी मैमल है. दोनों ही क्या हैं? मैमल्स हैं. दोनों ही मैमल्स हैं. मतलब स्ट्रक्चर इनके फोर लिम्ब का सेम है, काम अलग अलग है. वेल्स विल हेल्प इन वेल का फोर लिम्ब विल हेल्प इन स्विमिंग, बैट का फॉर फ्लाइंग. सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो मिल गया हमें आंसर. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. एक इंसेक्ट है, एक बर्ड है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, काम सेम है, फ्लाइंग. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट. एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन. पेंगुइन क्या है? बर्ड है. देखो ये एनिमल भी रिपीट हुआ है. डॉल्फिन क्या है? मैमल है. दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, काम एक है, स्विमिंग. सो इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आंसर हमें मिल चुका है. करेक्ट आंसर इज 2. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in. तो बेटा असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जोलॉजी में आए नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, सीक्वेंस में जमाना है. इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इस बार, राइट. सो इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड afferent arteriole, isn't it? Juxtaglomerular apparatus बनता है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स से in this DCT and afferent arteriole. So answer should be 3. Okay. Next one. So the following reaction depicts the activity of a particular class of enzyme. अब ये reaction को पहले समझो. इसमें क्या हो रहा है? Bonds are broken. Okay. And water is not involved. So yes, it is आंसर विल बी लाइएजेस, बिकॉज जो एंजाइम्स इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे दोज विल बी टर्म्ड एज लाइएजेस बिकॉज द बॉन्ड्स आर ब्रोकन हियर एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर. सो आंसर हियर इज 2. यस. नेक्स्ट वन. मोलस्का की अगर हम बात करें, मोलस्क विल शो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स एंड गिल्स से होने वाले रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. रेप्टाइल्स में जनरली हम देखेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एडल्ट एम्फीबियन में हम पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखेंगे. इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉग्स, सो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स भी होगा, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन भी होगा, सो पल्मोनरी भी आएगा इसमें, क्यूटेनियस भी आएगा. सो सी इज मैच्ड विथ 4. एंड अमीबा में होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन.
So A is matched with 2. Okay? A is matched with 2, B is matched with 1, C is matched with 4 and D is matched with 3. राइट? सो करेक्ट आंसर हमारे पास है 2. एक बार चेक कर लेते हैं. A is matched with 2, B is matched with 1, C is matched with 4 and D is matched with 3. Yes, correct answer here should be 2. Okay? नेक्स्ट, तो इवोल्यूशन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है और कई बार हम देखते हैं कि इस तरह से जो ईयर्स दिए हैं वो कभी हमें याद रहते हैं, कभी याद नहीं रहते हैं. बट थैंक गॉड कि जो ईयर्स पूछे जाते हैं ये हम पढ़ते हैं, याद भी रहता है, हमने कई बार रिवाइज भी किया है. तो यहाँ पर भी चांसेस कम होंगे मिस्टेक करने के, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा और कुछ ईयर्स पूछे जाते शायद हम कंफ्यूज हो जाते. सीक्वेंस भी प्रॉपर है. लाइक अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो हमें पता था कि द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ. ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद रखने वाला है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो invertebrates were formed and became active. 350 million years ago jawless fishes probably evolved and about 320 million years ago seaweeds and few plants probably existed. So A is matched with 2, B is matched with 4, C is matched with 1 and D is matched with 3. So answer हमें मिल चुका है. Correct answer is 1. किसी बच्चों को कोई ऐसा बच्चा जिसको ये याद नहीं था और गलत किया है, बताओ मुझे, जल्दी बताओ. ऐसा कोई बच्चा था? राइट. सो बेसिकली इसके साथ ही हमने सारे क्वेश्चन जूलॉजी के सॉल्व कर लिए हैं. अगर मैं ओवरऑल जूलॉजी की बात करूं तो जूलॉजी का पोर्शन इजी था, थोड़ा लेंदी था, काफ़ी कुछ मेमोरी बेस्ड था, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस नहीं आए थे, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, सीक्वेंस में जमाने वाले क्वेश्चंस थे, करेक्ट इनकरेक्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स में बताने वाले क्वेश्चंस थे. इजंट इट? ये हो सकता है कि सिंस बायो लेंदी था तो फिजिक्स करने में आपको शायद थोड़ा कम टाइम मिला होगा. और जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 11 क्वेश्चंस थे, राइट. ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चंस थे, बायोमोलिक्यूल से 4 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे, बायोटेक्नोलॉजी से. तो ऐसा कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं. जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से यू गॉट 2 क्वेश्चंस. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि मैम कॉकरोच आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए बच्चों नहीं आया. एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन नहीं था, 2 क्वेश्चन थे सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग से, वो भी इजी थे. इजंट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव गेन्ड गुड इंसाइट अबाउट द क्वेश्चन पेपर. आप सभी ने एनालिसिस कर लिया है, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं. कुछ आप लिंक देख रहे होंगे हमारे चैट बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करोगे, यू कैन प्रेडिक्ट योर रैंक ऑल्सो. तो बस अब तैयारी करो काउंसलिंग की, राइट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग.